Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Safdar Hussain Tahir in the EduVN channel regarding fuzzy set qualitative comparative analysis. I am here. Assalamu alaikum. All over the world. Good morning, good afternoon, and good evening. All over the world, people are hearing me, and uh, this is a live sessions of fuzzy set qualitative comparative analysis. As you know, fuzzy set qualitative comparative analysis is a asymmetric new research methodology that will give you the fantastic results, especially in the field of social sciences. Uh, the base of this methodology uh, is the five different things that we are to start in the name of Almighty Allah. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. And it is He who created the night and the day and the sun and the moon, each floating in its orbit. अल्लाह ताला ने हमें फरमा दिया, हमें बता दिया कि ये जो सूरज है और ये जो चांद है, ये सब के सब अपने अपने फ्लोटिंग अपने अपने मिदार में घूम रहे हैं। ये सब अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं। So let me going to show you the scenario of a universe. Universe scenario is in this way. This is a whole universe where individual is connected with the micro system, and then micro system and individual is connected with the meso system, and all three connected with the exosystem, macro system, and chrono system. The whole universe in the form of set and subset. हमने ये पढ़ा कि जो सारी कायनात है वो सेट और सबसेट के रिलेशन पर कायम है। अगर हम इंसान के अंदर देखें, जो माइक्रो कॉज़म है, इंसान के अंदर की जो सिस्टम है, इंसान जो एक कंप्लीट बॉडी है, ऑल द बॉडी इज आल्सो कंसिस्टिंग इन द फॉर्म्स ऑफ अ सेट, सबसेट एंड सेट. So whatever around us in the form of set and subset, and whatever within our body, that is also in the form of set and subset. So the microcosm is connected with the macrocosm. Every system on the universe, every system in the universe is reduced by Almighty Allah in a miniature scale and put in the body of each and every person. So the every person is also a universe. In this way, the both universe, whether the individualism and or the universe, whole universe is connected in such a way that there is interdependent and interconnected relationship. So the relationship between कॉज़म एंड माइक्रोकॉज़म। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान के अंदर की एक यूनिवर्स है और एक फिर सारी कायनात बाहर है। तो ये सारी बाहर वाली कायनात छोटे स्केल पे हर इंसान के अंदर मौजूद है, और इस तरह से हम कहते हैं कि ये एक कंप्लीट यूनिवर्स है, यानी एक बाहर यूनिवर्स है और एक हर इंसान के अंदर यूनिवर्स है, और ये दोनों यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड हैं। जिस मेथडोलॉजी को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस मेथडोलॉजी कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर और कुछ थ्योरीज के ऊपर बेस कर रही है। तो सबसे पहले ये जिस पे बेस कर रही है वो है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि जो कंपोनेंट होते हैं वो होल जो है उसके इक्वल हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, यानी होल इज ग्रेटर और इक्वल टू सम ऑफ इट्स कंपोनेंट।
Then comes system theory. System theory says that everyone is everyone the system theory से ये कह रही है कि the study of the society is a complex arrangement of elements. So we have a complex arrangement. This complex arrangement is a bit difficult to predict. So it evolve. ये हमारे बाहर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो मल्टी फैक्टर से इवॉल्व होता है, किसी सिंगल फैक्टर से इवॉल्व नहीं होता। देन कम्स कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी कहती है कि ये जो सिस्टम है ये अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी सजेस्ट दैट सिस्टम स्पेशली सोशल, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल ones are inherently predictable, unpredictable because they involve numerous interconnected components interchangeably dynamically. There are so many components around us, and they participated in the outcome. So it looks difficult to predict. But at the same time, we have some order generating rules. हमारे पास कुछ rules हैं जो order generating है और उन order generating rule की वजह से हम predict कर सकते हैं। Then comes Set theorem. Set theorem आप जानते हैं कि जितना भी connection है कायनात में ये Set theorem के ऊपर है और Set theorem कहता है कि ये सेट और सब सेट के रिलेशन में चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। देन कम्बिनेशन एल्गोरिथम, ये जो सेट है जब दूसरे सेट से मिलता है तो ये कम्बिनेशन ऑफ सेट्स बनता है और ये एल्गोरिथम भी इस मेथडोलॉजी की बेस है। So these are the basis of this methodology. Again, the Boolean algebra. Then we have a 0 and 1 system, that is a binary variable. The binary variable is also the base of this software. That is a 0 means absent and 1 means present. Similarly, we convert this 0 and 1 in a fuzzy logic where says there is no absolute truth, there is a degree of truth. This is also the base of these. So these 6 are different set that based on this methodology. Now today we will discuss which site by which you can download this software. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Saf. Look at there. This is the site on which you can find the software, and this is a free downloadable, and you can download it and you can run this software on your laptop and you can do the analysis. This is what I want to say. Then there's the QCA data. QCA, both kinds of the data, whether it's in secondary and primary. Secondary data B or primary data, both are acceptable in this software. It may be in this way, it may be in this way, it may be in this way, whatsoever. It's you can say primary and secondary data. Now we are going to start today the fuzzy set qualitative comparative analysis. लेट मी टू स्टार्ट दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को हम शुरू करते हैं जी। जैसा कि मैंने आज बताया था कि आज हमने इस सॉफ्टवेयर को शुरू करना है और ये सॉफ्टवेयर जो है किस तरह से चलेगा और हम क्या इस पे करेंगे। तो यकीनी तौर पर अब मैं इसकी आपको डिटेल बताने लगा हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैं यहाँ रन कर रहा हूँ।
ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो मैंने साइट बताई थी उस साइट से आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर आपके सामने है, ये मैंने अभी खोला है। तो अ, अब आप देखिएगा कि इसका डाटा जो है, डाटा जो है वो आपको इस फॉर्म में यानी एक्सेल शीट में नॉर्मली होता है। तो एक्सेल शीट में अगर डाटा है तो उसको आपने ये आपके सामने डाटा है। ये डाटा है, ये 18 कंट्रीज का डाटा है। 18 कंट्री का डाटा जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी रेट, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स एंड सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये वेरिएबल जो हैं, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करते हैं। अर्बनाइजेशन डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करती है, लिटरेसी रेट और इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। तो ये आपके पास डाटा है। इस डाटे को आपने जो है वो फॉर्मेट में CSV में लेके जाना है। आप इसे सिंपल सेव करेंगे और CSV फाइल में ले जाएंगे। ये मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर CSV फाइल जो है उसको लेता है। तो अब हम ओपन करते हैं इस फाइल को। ओरिजिनल डाटा हमारे पास है, ये फाइल ओपन हो गई है। तो इस फाइल को हमने सबसे पहले जो है वो डिकोड करना है, यानी रीकोड करना है। रीकोड हमने किस पे करना है? अब ये है वो मरहला जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आज ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम रीकोड कैसे करेंगे। अगर हम इसको सिंपल इस पे रिग्रेशन रन करें, तो ट्रेडिशनल एनालिसिस जो है, जो हम रिग्रेशन से करते हैं, और वो रिग्रेशन अगर हम करें तो ये SM लिपसेट पॉलिटिकल मैन का डाटा है, जो मैंने नेट से उठाया है, और उसी को ही मैंने बेस बना के कोशिश की है इस पे बात करने की। तो अगर हम इसको रिग्रेशन रन करते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास आते हैं, और ये रिजल्ट हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, वो सिग्निफिकेंट है। देयर इज अ नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज अ सिग्निफिकेंट इन दिस मॉडल। इस मॉडल में कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि ये जो मॉडल है ये फिट है, और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मॉडल फिट है, लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। अब मुझे क्या करना है? रिग्रेशन में मैं ये करता हूँ, रिग्रेशन में ये बात बड़ी समझने वाली है। रिग्रेशन जो है, जितनी भी ट्रेडिशनल हमारी मेथडोलॉजी है, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बेस करती है। रिग्रेशन बेस्ड ऑन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डाटा ज्यादा होगा तो यकीनी तौर पर जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं, मीन है, मोड है, मीडियन है, दे विल गिव अ गुड वैल्यू, यानी वो एग्रीगेट वैल्यू आपको देंगे, और उसी को हम बेस बनाते हैं। बट दिस इज एसिमेट्रिक एनालिसिस। तो एसिमेट्रिक एनालिसिस में ये बात तो आप अच्छी तरह समझ जाएं कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें ये नहीं आएंगे। दैट इज वाई हमें फायदा है कि कम डाटा भी इस पे अच्छे रिजल्ट देता है। यानी अगर आपके पास 15 केस हैं, 20 केस है, 25 हैं, या आपके पास जैसे ये 18 केस हैं, तो बड़ी अच्छी तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। 50 केस हैं, आप थीसिस लिख सकते हैं, आप फुल उस पे काम कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस हमें एक सहूलत फराहम करता है, और उस सहूलत की वजह से हम जो है वो पूरा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी अब हमें बहुत ज़्यादा डाटे की ज़रूरत नहीं है, और हमें सिर्फ यूँ समझिए कि हमें सिर्फ some of my student of my
क्लास MBA क्लास इज देयर गुड। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस मेथोडोलॉजी का ये फ़ायदा है कि इसमें हमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और कम डाटा जो है वो भी हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल है और बड़ा अच्छा हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम पहले तो हम ये बात ज़हन से निकाल दें कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे जाएँगे, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ़ सिमेट्रिक डाटे में और वो वहां पे होता है जो आपका कन्वेंशनल मेथड है। ये आपका कन्वेंशनल नहीं है, नॉवल एसिमेट्रिक रिसर्च मेथडोलॉजी। दिस इज अ नॉवल एसिमेट्रिक रिसर्च मेथडोलॉजी which is a more superior and more fruitful than the regression, especially in a small n case when data is small in this case। कि अगर ये सिर्फ 18 कंट्री का डाटा है तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, ऐसी सूरत में हम कैसे एनालिसिस रन कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए जी देखते हैं। अब हमने ये जब इसके थ्रेशोल्ड लेने हैं तो वो थ्रेशोल्ड हमने क्या लेने हैं। ये थ्रेशोल्ड हम अगर रिग्रेशन होती तो हम इसका मीन लेते, लेकिन अब हम मीन नहीं लेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। मसलन ये GN ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसकी ये डेफिनेशन है। ये दो रेफरेंस दिए हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये 600 US डॉलर, वेयर इज 600 US डॉलर, इट मींस इट्स अ रिच, लेस देन 600 US डॉलर इट मीन पुअर। द पुअर इज जीरो, द रिच इज वन। तो सो we convert it the GNP in 0 and 1 here, रीकोड करेंगे हम। और रीकोड के लिए हमें रेंज लोएस्ट टू 600, द वैल्यू इज 0 ऐड कर देंगे। और देन रेंज फ्रॉम मोर देन 600 टू हाईएस्ट, द वैल्यू इज 1। व्हाट 2 ओपन थे तो शायद रिपीट कर लेते हैं। रिकोड lowest to 600, the value is 0, 0, add, then range 600 to value is 1, add। और यहाँ पर अब इसका नाम जो है वो आप रख लें GNPEAP1। ओके करेंगे तो ये एक नया वेरिएबल जनरेट हो गया। तो इस तरह से आपने इसको रीकोड कर दिया। तो ये आपके सामने ये वेरिएबल एक हमने रीकोड 01 फॉर्म में ले गए। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन हमको देखेंगे। थ्रेशोल्ड इसका 40% है। इसका ये रेफरेंस गिवन है। उसने कहा द थ्रेशोल्ड बिटवीन प्रीडोमिनेटली रूरल एग्रेरियन सोसाइटीज एंड मेजॉरिटी अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में अगर 40% से ज़्यादा है तो हम कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है। अगर 40% से कम है तो देयर इज अ नो अर्बनाइजेशन। More than 40% there is urbanization, that is 1, less than 40% there is no urbanization, that is 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 40% अर्बनाइजेशन को हम करेंगे। इसको हम सेलेक्ट कर लें, रिकोड, यहां से अर्बनाइजेशन दिस। अब देखें ऑलरेडी परसेंटेज में डाटा है तो आप करें जी दिस वन लोएस्ट टू 40, द वैल्यू इज 0 ऐड कर दें। रेंज करें 40, द वैल्यू इज 1।
ऐड कर दें और इसका नाम आप रख लें URBANIZATION 1 लगा दें आगे। then this is the second variable. तो the second is also recoding. दो हमने रिकोड कर लिए। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। तो ये थर्ड है लिटरेसी। तो लिटरेसी में यूनेस्को ने डिफाइन किया है, यूनेस्को says that 80%, more than 80% seems to be literate and less than 80% seem to be illiterate. So then 40% is the threshold. तो अब हम इसको इस तरह से रिकोड करते हैं। रिकोड यहाँ से हम लिटरेसी लोएस्ट टू 80, value 0, and then range 80 to highest, value 1. That's add. And literacy LITER LITERACY 1. Okay, this is the third one. So recode, we have recoded the third one. Now industrial labor force. Industrial labor force, we don't need any mean, average value, mode or median. We are using the definition. Threshold predominantly agrarian labor force and one with meaningful industrial sector. आपके सामने ये इसका भी एक रेफरेंस गिवन है। 25% से ज़्यादा है तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स प्रेजेंट है। 25% से कम है तो इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स more than 50%, yes, more than 50%, more than 25% 1 है, less than 25% है तो इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स नहीं है, जिसको हम 0 कहेंगे। तो आइए 25% पर इसको भी हम डीकोड कर देते हैं। recode, and this is industrial labor force. This lowest to 25, that is 0, add a range 25 to highest, that is 1. This one, industrial labor force, INDLABF 1. So we use one new variable generated. तो ये नया वेरिएबल आ गए। तो ये सारे के सारे वेरिएबल जो थे अब वो हमने 0 और 1 की फॉर्म में यानी क्रिस्प सेट में ले गए। तो इस तरह से हमने सारे वेरिएबल्स को रिकोड कर लिया। आई होप आप के सामने ये सारी शीट मैंने स्क्रीन शेयर की थी कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने कोड को रिकोड कर दिया। हमने जो पूरा डाटा था उसको 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 और 0 की फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, 1 और 0 की फॉर्म में जब डाटा कन्वर्ट हो जाएगा तो आप पहले वाले डाटे को डिलीट कर दें ताकि आपके सामने जो है वो आप इस डाटे को सेव भी कर सकते हैं, बल्कि सेव कर लें। अब इसको बेशक सेव एज कर लें, एक और फाइल में ये सेव हो जाएगा। अब इसको आप कोई नाम दे दें, ये नाम दे दें, ये पहला सेव है, सेव हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको इन कॉलम को ख़त्म कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ रखेंगे, वेरिएबल पे जाएंगे, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो गया। यहाँ रखेंगे, वेरिएबल पे जाएंगे, डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट हो गया। यहाँ रखेंगे, वेरिएबल पे जाएंगे, डिलीट करेंगे, ये कॉलम भी डिलीट हो गया। वेरिएबल पे जाएंगे और तो इसको डिलीट करेंगे, ये कॉलम।
अब आपके पास रिकोडेड का डाटा रह गया, बाकी डाटा आपने सारे का सारा डिलीट कर दिया। अब इसको भी आप सेव करें, सेव एज करें और इसको आप बी कह दें ताकि याद रहे ये आपने सेव कर दिया। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने डाटे को रीकोड करना है। इस तरह से रीकोड किस पे करना है मैं एक दफ़ा फिर बताऊंगा। जो मीन और मीडियन और मोड है उस पे नहीं करना, बल्कि रीकोड करना है आपने उसके ऊपर, यानी जो डेफिनेशंस है कोई किसी डेफिनेशन के ऊपर जाके आपने रिकोड करना है। तो ये शायद मैं दिखा नहीं सका, आपने यहाँ करना है वेरिएबल्स, और अगर आप ये डिलीट को क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप ये कॉलम जो है डिलीट कर दिए हैं और बाकी कॉलम जो है वो मेरे पास रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये फिर से ओपन करके दिखा सकता हूँ। हमने ए को सेव किया था, ए को मैंने खोल लिया, ये खुल गया। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ जाना है, डिलीट करना है, ये डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ गए, डिलीट, ये भी डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ गए, डिलीट, और ये भी डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ गए, डिलीट, और ये भी डिलीट। अब ये वाला डाटा आपके पास रह गया, तो इसको आप जो है अब वो बेशक सेव कर सकते हैं। ये आपने सेव कर दिया। तो इस तरह से अब सारे का सारा डाटा आपके सामने मैंने रीकोड कर दिया। तो रीकोडेड डाटा जो है वो अब आप यूज कर सकते हैं। ये क्रिस्प सेट का डाटा, इसको दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द क्रिस्प सेट, यानी ऑल द डाटा इन अ 0 और 1, या तो बाइनरी फॉर्म में है, बूलियन अलजेब्रे की फॉर्म में है, और ये बूलियन अलजेब्रे की फॉर्म का डाटा जो है इसको आप 1 और 0 की फॉर्म में कर सकते हैं। ये 1 और 0 की फॉर्म से आगे हम क्या करेंगे और क्या हमारा प्रोसेस होगा, मैं देखता हूं कि शायद कोई क्वेश्चन अगर है तो हम पहले वो क्वेश्चन ले लें। नो क्वेश्चन सो फार। गुड। जी, क्वेश्चन नहीं है। अब हमने क्या करना है, तो अब हम जाएंगे एनालाइज पे, एनालाइज पे जाके ट्रुथ टेबल एल्गोरिथम क्लिक कर दिया। अब आपका जो आउटकम वेरिएबल है वो आपने यहाँ ले जाना है, बाकी जो आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं वो आप वेरिएबल्स कंडीशंस हैं वो नीचे आ गए। और ये आप अगर उसके केस आईडीज लेना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं रिजल्ट के साथ ये भी आए, तो केस आईडी को आप क्लिक कर देंगे, आप ओके करेंगे, तो ये ट्रुथ टेबल आपके सामने एक आ जाएगा। अच्छा, ट्रुथ टेबल को आप सेव करने से पहले यहाँ पे इसको डिलीट और कोड इसके कर, यानी कि वो केसेस जो जेन्युइन केसेस हैं, जो सिग्निफिकेंट हैं, वो रह जाएंगे, और बाकी केसेस जो है वो हम चाहते हैं डिलीट। ये डिफॉल्ट में होगा, डिलीट रोज विड्थ नंबर लेस देन 1 एंड सेट सर्वाइवल टू 1 फॉर द रोज विद कंसिस्टेंसी 0.8। ये डिफॉल्ट सेट है, इसी को ही आपने फॉलो करना है, आपने ओके कर देना है। ये ट्रुथ टेबल आपके सामने आ गया। इस ट्रुथ टेबल को आपने सेव कर लेना है, ये CSV फाइल में सेव हो जाएगा। तो आप इसको सेव कर रहे हैं और ये आपका ट्रुथ टेबल यहाँ सेव हो। यहाँ आप क्योंकि ट्रुथ टेबल जब है आप पेपर में जब आपको मेंशन करना होगा, तो इसलिए ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल आपका यहाँ सेव हो गया। और ट्रुथ टेबल को ये आप गौर से देखें, तो ये ट्रुथ टेबल ने आइडेंटिफाई किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव। ये 9 कॉम्बिनेशन उसने ढूंढे हैं।
जो 18 केसेस थे, लेकिन उसमें से 9 कॉम्बिनेशन है, जिनमें से 3 कॉम्बिनेशन ये कह रहे हैं कि सर्वाइवल है, और बाकी जो 6 कॉम्बिनेशन है, अब वो नॉट सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये ट्रुथ टेबल आपको इसी फॉर्म में आपने देना है। तो ये आपको बताता है कि ये भी एक केस है, कॉम्बिनेशन है, कयूअल कंडीशन है कि जीएनपी प्रेजेंट हो, अर्बनाइजेशन एब्सेंट हो, लिटरेसी प्रेजेंट हो, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है वो एब्सेंट हो, और ये एक केस बनता है, और सर्वाइवल 1 आएगा। अब इसी तरह से ये एक कयूअल कंडीशन है, इससे भी सर्वाइवल 1 आएगा, और ये भी एक कयूअल कंडीशन है और उससे भी सर्वाइवल 1 आएगा। बाकी सारी की सारे जो कयूअल कंडीशन है, अब वो सर्वाइवल 0 दे रही है, यानी कि वो नॉट डेमोक्रेसी को मेंशन कर रही है। तो ऐसी सूरत में आपने स्टैंडर्ड एनालिसिस करना है। ये नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एनालिसिस, दिस इज अ स्टैंडर्ड एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड एनालिसिस को आपने क्लिक किया, अब आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट, एब्सेंट। ये कयूअल कंडीशन जो है ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अगर आपको इनका इल्म है, इफ यू नो दैट विच वन इज प्रेजेंट बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल एंड विच वन इज एब्सेंट बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल, तो फिर आप उस जिसको प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, और जिसको एब्सेंट है उसको एब्सेंट में लिखेंगे। अगर आपको ये पूरी तरह इल्म नहीं है, आ, तो फिर आप प्रेजेंट और एब्सेंट यानी यहाँ पे ही इसको आप लिखेंगे। तो आपको पता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जितनी ज्यादा होगी, तो ये प्रेजेंट बेहतर है सर्वाइवल के लिए। अर्बनाइजेशन जो है वो एब्सेंट बेहतर है, और लिटरेसी रेट जो है वो प्रेजेंट बेहतर है। इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है वो भी प्रेजेंट बेहतर है। तो आप इसको ओके कर देंगे, और जब आप ओके करेंगे तो ये इसके रिजल्ट आ गए जी। ये देखिए कितना आसान काम है, कितनी आसानी के साथ आपने इसके रिजल्ट निकाल दिए। अब इसके रिजल्ट जो है, अब वो 3 तरह के हैं। पहला ये देखें लिखा हुआ है, पहला रिजल्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, फिर लिखा हुआ है पार्सिमोनियस सॉल्यूशन, और फिर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। तो मैं अब थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये क्या हैं। ये जी देखें, हमने इसे डिक्टोमाइज कर लिया था इस बेस पे, और ये डाटा हमारे पास आ गया था, और फिर ये ट्रुथ टेबल हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, और ये ट्रुथ टेबल हमारे पास वहाँ आ गया है। तो उसके बाद हमने अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, तो ये आया कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। अब ये समझना होगा व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इट मीन व्हेन, जब आप कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सॉल्यूशन 3 हमारे पास आएंगे। ये पहला सॉल्यूशन इस तरह से होगा, और ये आप हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन टोटली एम्पिरिकल बेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आपको ये बताता है जो आपका एम्पिरिक्स हैं, जो आपके मसलन अगर आपने लेट सपोज आप किसी एनालिसिस के लिए जाते हैं, और आप कोई 12 केस जो हैं, अब वो देखते हैं कि जो क्राइम सीन के ऊपर जाके आपने अपनी आंखों से देखे, आप सिर्फ उन्हीं को बेस बना के रिजल्ट निकालें। यानी जो एम्पिरिकल है, सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल की आप बेस पे ही आप रिजल्ट निकालें, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। मैं इस तरह से इसको कह सकता हूँ, व्हाट अ कंजर्वेटिव एक्चुअली मीन द कोर आइडिया। इमेजिन you are a detective, you have witnessed 12 crime scenes. The conservative solution says you may only draw conclusion from crime scene you actually visited. जो एक्चुअली आपने क्राइम सीन को विजिट किया, उसी से ही रिजल्ट ड्रा करने का नाम ये है। इन दिस केस यू आर फॉरबिडन फ्रॉम रीजनिंग अबाउट व्हाट वुड हैव हैपेंड एट लोकेशन यू नेवर वेंट टू, और कोई ऐसी चीज आपने रिजल्ट में नहीं डालनी जहां आप गए ना हो। जो आपने आंखों देखा है
उसी की बेस पे आपने रिजल्ट निकाल दिए, तो इसे हम कहते हैं एम्पिरिकली बेस पे आपने रिजल्ट कर दिए। आपने कोई काउंटर फैक्चुअल केस डिस्कस ही नहीं किए, आपने कोई केस जो रह गए थे जहां आपने विजिट नहीं किया, वो आपने उसकी बेस पे रिजल्ट नहीं निकाले, पर सिर्फ आपने जहां विजिट किया था, जो देखा था, उसकी बेस पर रिजल्ट निकाले। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज 12 केस ऐसे थे और कोई 4 या 6 केस ऐसे थे जो एब्सेंट थे, जो जो आपको आपने खुद नहीं देखे, किसी ने आपको बताया या आपको खबरें मिली, तो उनको आपने रिजल्ट में अगर शामिल कर लिया, तो देन कम्स पार्सिमोनियस सॉल्यूशन। पार्सिमोनियस सॉल्यूशन विल कम, कहां से आएगा? यकीनी तौर पर ऑल लॉजिकल जो मिसिंग केसेस हैं, वो भी उसमें हमने ऐड कर लिए। यूज ऑल लॉजिकल शॉर्टकट्स इवन इफ द मिसिंग केस नेवर विजिटेड। Let's suppose a 12 case you visited and 6 case or 4 case you never visited, but you considered them in your result, in your finding. तो सो जब आपने फाइंडिंग निकाली, तो आपने उनको भी शामिल कर लिया, वो तमाम के तमाम केसेस को आपने शामिल कर लिया, और ऐसा सोल्यूशन कहलाता है पार्सिमोनियस सोल्यूशन। Then comes intermediate solution. Intermediate solution is a solution. Intermediate solution is a solution which use the missing case, but only if they are logically supported by theory. अगर तो वो जो 6 केस रह गए थे, अगर वो कोई थ्योरी सपोर्ट कर रही है और लॉजिकली उसका कोई 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 एज बन रहा है और कोई सपोर्ट बन रही है, तो फिर हम उनको मानेंगे, या उन केसेस में से उतने मानेंगे जितने के हम कह रहे हैं कि हमें जिनका लॉजिक हमें बनता है, जिनका लॉजिक नहीं बनता वो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो 3 तरह के सॉल्यूशन हैं, मैं एक दफ़ा फिर बताऊँ, तो 3 तरह के सॉल्यूशन हम निकालते हैं, हमें फजी सेट का जो सॉफ्टवेयर है वो देता है। पहला है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, टोटल का टोटल जो आपका आई विटनेस का सीन है, जो एम्पिरिकल रिजल्ट हैं, वही आएंगे। फिर है पार्सिमोनियस सॉल्यूशन। पार्सिमोनियस सॉल्यूशन मीन empirical cases plus all the missing cases, उनको भी आपने कंसिडर कर दिया और उनसे आपने रिजल्ट ड्रा कर लिए। आपने उनकी बेस को, उनको भी आपने बेस बना दिया। देन कम्स इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। इंटरमीडिएट सॉल्यूशन में सारे इंपिरिकल एविडेंस प्लस इंपिरिकल एविडेंस के साथ जो काउंटर फैक्चुअल केस हैं, जो मिसिंग केस हैं, उन मिसिंग केस में से वो वाले केस आपने शामिल किए जो केस जिनको थ्योरी सपोर्ट करती है। तो आप कह सकते हैं, अगर मैं इसकी इसको इसको एक टेबल से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, ये टेबल इसकी डिटेल बता रहा है कि जो अब देखिए यूज़ लॉजिकल रिमाइंडर इसमें हम यूज नहीं करते, वो ही केस यूज करते हैं जो जो कि हमें जो जिनका एम्पिरिकल एविडेंस है। तमाम रिमाइंडर केस हम यूज कर लेते हैं, सिर्फ सेलेक्टिव रिमाइंडर केस हम यूज करते हैं। अब अगर तो आप कोई इफ यू वांट डिटेल्ड एम्पिरिकल फाइंडिंग विदाउट अजम्पशन, बगैर किसी अजम्पशन के आप सिर्फ एम्पिरिकल फाइंडिंग चाहते हैं, यानी आप कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपलेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप जो है उसका पार्सिमोनियस सॉल्यूशन यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एम्पिरिकल भी हो और वो केस जिनको थ्योरी सपोर्ट करती है, उनको भी हम जो है अब वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसमें ऑल कोर और प्रिफरल केस होते हैं, इसमें सिर्फ कोर केस।
और इसमें कोर और सम प्रेफरल कंडीशंस होती हैं। यानी वो कंडीशनें जो जो 100% जो एविडेंस बेस्ड हैं वो कोर कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन जो अजम्पशन की बेस पे हैं तो वो प्रेफरल कंडीशन है। लिहाजा कॉम्प्लेक्स में ऑल कोर और प्रेफरल्स होते हैं और ओनली कोर्स होते हैं। इसमें ऑल कोर प्लस सम प्रेफरल्स होते हैं। तो ये इसमें फर्क है। इसकी इंटरप्रिटेबिलिटी लो होती है। इसकी पार्सिमोनियस सॉल्यूशन की हाई होती है, और मीडियम बैलेंस की आप कह लें कि बैलेंस्ड होती है, यानी कि इंटरमीडिएट। लिहाजा जब भी हम रिजल्ट देंगे तो हम नॉर्मली इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस को हम देंगे। अभी तक हमने देख लिया कि 3 सॉल्यूशन हमारे सामने आ गए थे, और उन 3 सॉल्यूशन में से हम अब कह रहे हैं, मैंने उसकी डिटेल भी डिस्कस कर ली, हम कह रहे हैं कि हम जो है अब वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जा सकते हैं, पार्सिमोनियस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन हम इंटरमीडिएट की तरफ नॉर्मली जाते हैं क्योंकि ये रिजल्ट बैलेंस रिजल्ट है। ओके जी। देन हमने फिर किस तरह से इसका रिजल्ट शो करना है, ये अगर हम फिर देखें सॉफ्टवेयर, देखिए ज़रा, ये देखिए। अब हमने इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस में 2 सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। 2 सॉल्यूशंस हमें ये बता रहे हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एब्सेंट, लिटरेसी और इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है अब वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, यानी वो डेमोक्रेसी को सरवाइव कर सकती है। यानी 2 फैक्टर प्रेजेंट और एक मिसिंग मिल के, और ये कहाँ पे कौन कौन कंट्री में ये कर रही हैं, ये स्वीडन में हो रहा है, और ये स्वीडन के अलावा CZE ये कौन सा कंट्री है, देख लेते हैं अभी। बेहतर था कि हम इसका डच रिपब्लिक। तो ये 2 कंट्री ऐसे हैं जो कंट्री जो है ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। अब इस तरह से एक और कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रेजेंट है, अर्बनाइजेशन एब्सेंट है, लिटरेसी प्रेजेंट है, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स एब्सेंट है। और ये कौन कौन कंट्री कर रहे हैं, आयरलैंड कर रहे हैं, और ये सिर्फ आयरलैंड कर रहा है, यानी आयरलैंड ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। तो इस तरह से 2 सॉल्यूशन जो है अब वो आपको इस तरह से पॉसिबल हैं। अब हम इसका रिजल्ट कैसे लेते हैं, और प्रेफरल और कोर कंडीशन किस तरह से है। प्रेफरल कंडीशन वो कंडीशन होती हैं अ, जो कंडीशन पार्सिमोनियस सॉल्यूशन में नहीं है लेकिन इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस में है। वो कंडीशन प्रेफरल कंडीशंस होती हैं, यानी पार्सिमोनियस में नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट सॉल्यूशन में है। और वो कंडीशन, द कंडीशन which shows in parsimonious solutions but not show the condition which are not present in parsimonious solution but present in intermediate solution, these are the preferable conditions. The condition which are present in both solution, parsimonious and intermediate solution, they are the you can say is a कोर कंडीशन। अब हम इस रिजल्ट में अगर हम देखें तो कोर कंडीशन हमारी क्या होंगी, ये देखें। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इधर है नेगेटिव, एब्सेंट इधर, तो ये कोर कंडीशन नहीं है। लिटरेसी रेट
इधर है और इधर भी है, तो ये कोर कंडीशन है। इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इधर प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है, तो ये कोर। तो इस सोल्यूशन में सिर्फ लिटरेसी रेट जो है ये कोर कंडीशन है। तो जो कोर कंडीशन है उसको हम इस तरह से बड़ा दायरा, चूंकि इसमें हमने थोड़ा सा बदला है, तो ये वाली कोर कंडीशन है, और ये वाली भी एब्सेंट में कोर कंडीशन है। अगर दोनों साइड पे एब्सेंट है, दोनों सॉल्यूशन में एब्सेंट है, तो हम उसको कह सकते हैं। मसलन एक दफ़ा फिर हम देखेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे जीएनपी है पॉजिटिव, और यहाँ पे नीचे वाले सॉल्यूशन में जीएनपी पॉजिटिव है, तो जीएनपी इधर भी है, इधर भी है सेकंड सॉल्यूशन में। सेकंड सॉल्यूशन के लिए ये कोर कंडीशन है। इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स माइनस है, और इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स सेकंड में माइनस है, तो सेकंड के लिए इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है ये माइनस में कोर कंडीशन है। आप यूं समझ लें कि ये कंडीशन और ये कंडीशन में से जो ऐसी कंडीशन है जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, दे आर द कोर कंडीशन। द कंडीशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ parsimonious solution are also present in a in an intermediate solution. They are core condition, and if the conditions are not present in a parsimonious solution but present in a intermediate solution, they are the preferable condition. अब इस तरह से हम इन सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। ये सिर्फ आयरलैंड का सॉल्यूशन है, और ये आपका ज़ेक रिपब्लिक और स्वीडन का सॉल्यूशन है, यानी दो कंट्रीज जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन रिजल्ट को बताते हैं, और इस तरह से हम फिर वो इन कंडीशन को जाहिर कर सकते हैं कि ये वाले सॉल्यूशन आपको ये बता रहे हैं। इस तरह से आ, आपके सामने सॉल्यूशन है। तो अब हम ये रिजल्ट निकालेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स प्ले कोर रोल इन सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द वार पीरियड इन डेवलप्ड कंट्रीज। Literacy plays peripheral roles in survival of democracy during the war period in developed countries. Urbanization does not play any role in the survival of democracy during the war period of developed countries. तो इस तरह से आप अगर रिग्रेशन से देख रहे थे, तो कोई वेरिएबल जो था वो नहीं था, और तीन आपने यहाँ से रिजल्ट निकाले, और दे आर द वैलिड रिजल्ट एंड दे आर द गुड रिजल्ट। So in this way you can say this technique is replacing the regression, and this is a good technique, and we should apply in our research fuzzy set qualitative comparative analysis rather than that of a traditional technique. तो जो हमने देखा था कि जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वाला मेथड जो है कन्वेंशनल मेथड कह रहे थे। एक तो ये है कि आपको पता है कि जब आपके 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो कम से कम आपके जो केस हैं वो 30-32 होने चाहिए, फिर जाके कन्वेंशनल मेथड, क्योंकि वहाँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। यहाँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। यहाँ उसकी बेस जो है वो थ्योरी है, उसकी बेस जो है वो कोई डेफिनेशन है, कोई थ्योरेटिकल बेस है। ऑलरेडी किसी ने कहा हुआ है कि ये वाला थ्रेशोल्ड जो है, तो इस तरह से। तो आज के इस पूरे लेक्चर्स में हमने क्या किया, मैंने आपको बताया, एक दफ़ा फिर मैं डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज का पूरा लेक्चर हम रिपीट करना चाह रहे हैं। तो पूरे लेक्चर में मैंने ये बताया कि पूरी जो कायनात है वो सेट और सब सेट पे बेस कर रही है, और सारे के सारा सिस्टम हमारे इर्द गिर्द भी और हमारे अंदर भी सेट और सब सेट की फॉर्म में मौजूद है। लिहाजा ऐसा सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी बेस सेट थ्योरम हो। तो ये जो फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस है, 6 इसकी बेसिस हैं: सिस्टम थ्योरी, कंप्लेक्सिटी थ्योरी, और उसके बाद बुलियन अलजेब्रा, फजी लॉजिक, समीशन एल्गोरिथम, और पांचवा क्या था, छः इसकी बेस है। तो छठी बेस में एक दफ़ा फिर सिस्टम थ्योरी, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, सेट थ्योरम, फजी लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा,
ये सारे इसकी बेस करते हैं। तो इनकी बेस पर एक दफ़ा फिर एक शायद मैं मिस कर रहा हूँ, 1 मिनट। सिस्टम थ्योरी, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, सेट थ्योरम, फजी लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा और कॉम्बिनेशन एल्गोरिथम। तो ये इसकी बेस है, और इसकी बेस पे जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो सारा आगे चलाता है सिस्टम को। तो यकीनी तौर पर उसके बाद मैंने बताया कि सारा सिस्टम हमारे गिर्द जो है वो सेट और सबसेट रिलेशनशिप है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चार्ल्स रिगन ने इसको डेवलप किया, और मैं दिखाना चाहूंगा आपको चार्ल्स रिगन। मेरे पास एक स्लाइड है उसकी भी। तो जिस बंदे ने ये बड़ा जबरदस्त काम किया वो आपके सामने है। चार्ल्स रिगन, चांसलर, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी at the University of California, Department of Sociology. An American professor, Charles Regan, introduced this modern research methodology in 1987. बहुत दूर की बात नहीं है। तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं: CSQCA, FSQCA एंड मल्टी वैल्यू QCA। फिर मैंने आपको डाटा बता दिया कि इसमें दोनों तरह का डाटा जो है वो होता है। ये मैंने साइट भी दिखा दी कि यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो डाटा है आ, वो दोनों तरह का डाटा जो है यूज हो जाता है। शायद लगता है कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा नहीं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, दोनों तरह का डाटा आप यूज कर सकते हैं। और डाटा जितना ज्यादा हो बेहतर है, लेकिन अगर कम भी हो 15 से, जैसे ये 18 केस हैं, तो ये भी काफी हैं इस रिसर्च मेथडोलॉजी। लिहाजा मेरे वो दोस्त जो सोशल साइंसेस से ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक इस्लामियात से है, उर्दू से है, इंग्लिश से है, सोशियोलॉजी से है, और जिनका ताल्लुक जो है ऐसे सोशल साइंसेस से है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यानी ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे सब्जेक्ट जो ज़्यादा डाटा नहीं ले सकते, उनकी मजबूरी है, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और एम्पिरिकल एविडेंस से इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपके सामने आ, ये सॉफ्टवेयर रन किया कि सॉफ्टवेयर रन करके इसके 3 सॉल्यूशन थे: कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, पार्सिमोनियस सॉल्यूशन और इसका था इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। और फिर हमने रिजल्ट निकाल लिए, और रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाए। बहरहाल मैं दिखाना चाहूँगा कि अ, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप कोई मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, और ये मेरा ईमेल आईडी मौजूद है। और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपके क्वेश्चंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज़ This is a series of fuzzy set qualitative comparative analysis. I am Dr. Safdar Hussain Tahir in the EduVN channel by Dr. Tahir. यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, और आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका पूरा पूरा जो है वो रिप्लाई करूं, और हम मिल के इस मेथडोलॉजी को आगे बढ़ाएं। तो मैं ये कह रहा था कि जो सोशल साइंसेज के लोग हैं, जो उर्दू के लोग हैं, पंजाबी के लोग हैं, जो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस्लामिक स्टडीज है, और ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ज़्यादा डाटा पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने इंटरव्यू करने हैं, जिन्होंने केसेस करने हैं, वो कम लोगों का इंटरव्यू करके बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। तो भूलिए नहीं, फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस आपको हेल्प आउट करेगा, और बड़ी आसानी के साथ आप अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में इनको पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इजाज़त